If you know, you know. And that's Veronica back in the house, guys. Say hi. Is like, दीदी जल्दी याद कर लो. Hey guys and welcome back to my channel. Welcome back to Glam Studio. This is me, Mrs. Apurva Shubham Haradi Patil, and today I am up with a new video. So by the title and by the thumbnail आपको already पता है, we are going to try out some new makeup products. नया साल है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े नए products के साथ खेला जाए. And I've got some new launches, some not very new launches, but some very new launches and exciting launches as well. So I'm going to put my hands on that. But before moving on to our video, if you still haven't subscribed to this channel, then please do subscribe and press the bell icon right next to it to get notified with all our new videos. And without any further ado, let's begin with our video. So first to begin with skincare. तो skincare के लिए मैंने आज कुछ भी नहीं किया अपने चेहरे पे. This is my bare face. For skincare, I am going to use the PAX Aqua Grip Primer. ये this is waterproof and holds makeup up to 24-hour lock moisture. This is a very liquid kind of a primer as well as a moisturizer. आप इसको oil भी बोल सकते हो. So I'm going to try it out for the first time. I love the packaging. बहुत ही cute and travel friendly packaging है, and it will give me instant hydration. Just dabbing it on my. Okay, it has a weird kind of a smell. Not happy with the smell by the way. But apply करने के बाद I can say कि इतना ज़्यादा कुछ hydrating या nourishing मुझे feel नहीं हो रहा है. बहुत easily मेरे skin ने उसको absorb कर लिया और फिर से थोड़ा बहुत dry out लग रहा है मुझे जहाँ से मैं देख रही हूँ. I think मुझे और एक layer apply करना पड़ेगा, उसके बाद it will work. Okay, for the primer now I'm again going with the NYX Professional Makeup, the Marshmallow Primer. अब ये प्राइमर भी नया NYX ने लॉन्च किया है एंड आई वांटेड टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस. भाई ये बहुत बार ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था. इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट सुना है कि ये बहुत अच्छा प्राइमर है. सो आई एम गोइंग टू पंप अ लिटिल बिट, जस्ट दिस मच. दिस विल बी द राइट अमाउंट. वाओ, इट हैज़ अ वेरी स्वीट काइंड ऑफ अ स्मेल. जो मार्शमेलो का स्मेल होता है ना, सेम वैसा. एंड द टेक्स्चर इज, ओ माई गॉड, द टेक्स्चर इज वेरी सॉफ्ट यू गाइस. टच करते ही वो फील आ रहा है कि इट्स अ वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ अ प्राइमर. लेट्स अप्लाई. ये ज्यादा लिया है बिकॉज जो मुझे एक प्राइमर का लेयर चाहिए था फ्रॉम दैट एक्वा ग्रिप फ्रॉम पैक, वो मुझे मिल नहीं पाया, इसलिए मैंने ज्यादा प्राइमर लिया है तो मेरे को एक शील्ड मिल जाए प्राइमर का. वाओ, कैन यू सी दैट? मैंने सिर्फ एक बार रब किया एंड इट ब्लेंडेड इनटू माय स्किन लाइक अ मैजिक, वेरी स्मूथली. वाओ, दिस इज परफेक्ट. आई रियली लव सच काइंड ऑफ प्राइमर्स जो बहुत इजीली स्किन में मर्ज हो जाए एंड हैवी भी ना लगे स्किन पे एंड कोई वाइट कास्ट ना छोड़े, प्रॉपरली एकदम बिल्डअप हो जाए with the makeup. I think this is a very much goat for me because I love such primers जो बहुत easily melt हो जाए आपकी skin में. And this is for sure 100% yes from me. Okay, for the concealers, I have two concealers. One is from the Bobbi Brown. This is a color corrector concealer. And the second one is from the Stars. So, iska information, this is not a very famous product. It's a very magical product to hide all your pigmentations or your acne marks and everything. तो देखते हैं कि पक्का ये वैसे ही काम करता है. मुझे बहुत टाइम से ये प्रोडक्ट चाहिए था. So I just thought why not try it in my new makeup edition. I'll try to apply it under my eyes. Instantly मेरा जो अंडर आई बैग था वो कवर अप हो चुका है एंड आई कांट बिलीव दैट एक्चुअल में इट वर्क. लेट्स ट्राई अगेन. यहाँ पे मुझे ऑलरेडी एक एक्ने आफ्टर मार्क हो चुका है. लेट्स सी कि वहाँ पे वो छुपा पाता है कि नहीं. Is it actually happening कि मुझे ही लग रहा है ये? Oh my God, it's hiding the mark. If you can see, actual में वो मार्क छुप गया. But dude, it actually worked. Am I actually? I can't believe अभी मैंने पूरी तरह से उसे blend कर देने के बाद वो acne mark जो था वो गायब हो गया. Please invest in this product. It is totally worth buying. Okay, I have already applied it on my eyes. अब हम start करेंगे with our eye makeup. So for my eye makeup ना, I have got the K Beauty's Eye Canvas eyeshadow palette in the shade Sun Kissed. Now this is the newly launched palette hai, and if you can see the colors in this palette, peak sun kissed moments, all the peachy golden
एंड मॉव टोन्स, जो अगर आपको बहुत ही न्यूड शेड्स पसंद है, ज़्यादा ब्राइट टोन्स पसंद नहीं है, तो आई थिंक यू कैन गो विद दिस. एंड इसमें ग्लिटरी शेड्स भी है, मैट शेड्स भी है, डार्क शेड्स भी है. सो इट्स अ वेरी गुड पैलेट टू इन्वेस्ट. So I am going to go with a base color first and then I'll apply the darker tones. So for the base color I'm going with the peachy shade today. तो यहाँ पे जो ये base color दिख रहा है मुझे, literally peachy tone, वो हम लेंगे and I'll just apply the first layer. And the pigmentation is bomb, you guys. Like with just one stroke of the brush, मेरा पूरा eyelid cover हो चुका है K-beauty के products, because जितना उनका प्राइस है ना उसके हिसाब से they work वैसे ही, they are worth buying. उनके प्राइस एंड उनके प्रोडक्ट्स एंड उनका परफॉर्मेंस एक साथ आप अगर टैली करो ना तो इट इज वर्थ टू बाय. थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे होता है बट द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड पिगमेंटेशंस ऑफ द प्रोडक्ट आर ऑन पॉइंट. तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग जब भी आप K-beauty के कोई भी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो. एडेड अ सटल कलर, बहुत ही क्यूट एंड पीच सटल टोन है एंड कितना अच्छे से वो स्प्रेड हो गया ना मेरे आईलिड पे. ज़्यादा मुझे उस पर फोर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत लाइट वेट है और बहुत इजीली ब्लेंड भी हो गया. नाउ मुझे ऐड करना है थोड़ा सा ग्लिटर, और बट मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सा ग्लिटर ट्राई करूँ. बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है यहाँ पे. बहुत ही एक सटल ग्लिटर टोन है. देन वी ऑल्सो हैव अ वाइट kind of a glitter tone, फिर थोड़ा सा rust kind of tone and yellow tone and orange mauve tone. So I think I should go with something like this, क्योंकि अगर मैं ऑरेंज ग्लिटर ऐड करूंगी तो वो ज़्यादा उठ के नहीं आएगा. सो थोड़ा लाइटर टोन लेंगे हम. I'll take my flat brush and I'll just add little bit here. ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को. ग्लैड कि मैंने ये वाला कलर किया. तो मैं थोड़ा सा डार्कर टोन एट द एंड ऐड कर सकती हूँ. ओके, नाउ लेट्स ऐड अ डार्कर tone to make it like a sunset kind of a look at the end. I'll take a round brush, a fluffy round brush. I'll go with this one. This is a fluffy round brush and थोड़ा सा जो darker rusty color है ना मैं वो pick करूंगी and I'll just add little dimension at the end. टूगेदर ना एक थोड़ा बर्न्ड काइंड ऑफ ऑरेंज आई मेकअप लुक फील दे. ओके, द फाइनल से अबाउट दिस पैलेट इज आई एम इन लव विद दिस पैलेट. इतना पिगमेंटेड है और बहुत इजीली आपका आई कवर कर देता है. बहुत कम अमाउंट में भी ना बहुत इजीली कवर हो जाता है और बिल्कुल भी डस्ट पार्टिकल्स या हेवी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत लाइट पार्टिकल्स है और आपके आंखों पे बहुत इजीली सूट होता है, ना फॉल ऑफ है और ग्लिटरी शेड्स भी बहुत आप परफॉर्म कर रहे हैं. तो यू कैन गो विद. ओके, फॉर लाइनर आई हैव अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज द हुडा ब्यूटीज क्विक एंड इजी लाइनर. इट इज अ वेरी छोटू काइंड ऑफ अ लाइनर. यू कैन call it a mini line, but the tip of this liner is long enough कि आपको winged liner effect या fox eyeliners करने में बहुत easy पड़े. And we are going to do a slight kind of a winged liner at the end. I hope ये properly हो. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट. आई हैवेंट ever taken just 1 minute or 1 second to draw a winged liner. और ये लाइनर, ये छोटू सा लाइनर ने, can you see the wing going on at the end? It just did it in just 1 minute easily, very easy. You know, stroke that is happening, the tip of this liner that is happening, क्योंकि उसकी वजह से बहुत easily मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा. I just drawed a line and it just went like a wing. Broad wing liner achieve हो चुका है first time ever with this little प्रोडक्ट. आई थिंक मैंने इसको ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था बट इट्स perfect. If there is a big version of this one, I am going to order it. Okay, now completing my eye makeup with the MAC Stack Mascara. Now this is also a new launch by MAC and इसके मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज सुने हैं कि ये ऐसा इफेक्ट देता है आपके आंखों को कि आपको फॉल्सीज की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो मैंने सोचा why not try it out, बिकॉज मुझे हमेशा से फॉल्सीज लगाने में बहुत तकलीफ होती है rather than to use a mascara that gives you the length and also the volume in your lashes. तो देखते हैं क्या ये वैसा ही परफॉर्म करता है. The packaging though is very interesting. ये ऐसा कुछ अलग ही पैकेजिंग आया है of a mascara and the wand is also very छोटू. This is a mini version because मुझे ज़्यादा बड़े वर्जन, ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा मस्काराज है तो मेरे को बड़े वर्जन में इन्वेस्ट नहीं करना था. So I got a mini one and is also fuller. तो आप देख सकते हो शायद this product might perform to its best.
एक्चुअल में इट इज गिविंग अ फॉल्सी आई लैश इफेक्ट एज इट सेज, एंड उसने सच में एक्चुअली मेरे लैशेस को लिफ्ट किया है. सो येस, दिस प्रोडक्ट ऑल्सो वर्क्स एंड इज अ थम्स अप फ्रॉम मी. ओके, नाउ वी आर डन विथ अवर आई मेकअप. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर फेस मेकअप. तो जैसे मैंने आपको बोला, मेरे पास 2 कंसीलर है, तो उसमें से पहले हमारा जो स्टार कंसीलर था उसको हमने अप्लाई कर दिया है. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई आउट the Bobbi Brown stick concealer. Now this is a corrector stick and look at it, ये lipstick की तरह ऊपर आ रहा है. If you can see, it's just exactly looking like a lipstick, but it's not a lipstick, it is a concealer corrector stick. Now let's apply little क्योंकि मुझे already ज़रूरत नहीं है, but I'm going to try out on the spots जहाँ पे मुझे दिख रहा है. Very smooth in blending as well, but the coverage is kind of okayish. It's a not full coverage, it's medium kind of coverage. आपको अभी वो full coverage दिख रहा होगा क्योंकि already मैंने वो जो स्टार का कंसीलर था वो अप्लाई किया है, उसके ऊपर ये किया है. बट अगर ये डायरेक्टली यूज किया जाए तो आई थिंक इसका थोड़ा सा मीडियम काइंड ऑफ कवरेज होगा. नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द फाउंडेशन. सो आई हैव 2 foundations. These one is the old one and this is the newest launch by Huda Beauty. This one is the Smashbox का hollow tinted moisturizer foundation. ये बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है एंड इट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू गेट माय हैंड्स ऑन साइज, एंड दिस इज अ न्यूएस्ट लॉन्च फ्रॉम हुडा. दिस इज द हुडा ब्यूटीज फॉर फिल्टर ल्यूमिनस मैट फुल कवरेज लिक्विड फाउंडेशन. दिस इज ऑल्सो आई गॉट इन ट्राइवल साइज क्योंकि मुझे ये पहले ट्राई आउट करना था वेदर इट वर्क्स फॉर मी और नॉट, एंड देन आई कैन गेट अ बिगर वर्जन. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द Smashbox on the left side and the Huda Beauty one on the right side, so I'll get the clue कौन सा product works with me. And I think it's kind of lighter to my skin tone. The shade is light neutral. Hope it matches. Oh no, it's a very light tone. I can see clearly. बहुत white kind of finish देगा because मेरा undertone is yellow. Well, let me just blend करने के बाद actual पता चलेगा. फेयर काइंड ऑफ टोन, बट फिर भी इट इज गेटिंग ब्लेंडेड इन माई स्किन टोन वेरी इजीली. ज्यादा व्हाइटिश इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो आई थिंक इट्स ओके फॉर मी. नाउ लेट्स ट्राई द हुडा ब्यूटीज फॉर फिल्टर फाउंडेशन ऑन द राइट साइड. ओके, दिस इज ऑल्सो लाइटर टोन. आई डोंट नो क्यों मैंने लाइटर टोन सिलेक्ट किया, बट मैंने जब सिलेक्ट किया था तभी बहुत एग्जैक्ट टोन लग रहा था. ओके, दिस इज ऑल्सो इन द सेम color tone like the Smashbox one. Let's blend this. बहुत मुश्किल से ब्लेंड हुआ है ये हुडा ब्यूटी फॉर फिल्टर फाउंडेशन. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग बिकॉज आई यूज द हुडा ब्यूटीज फॉर फिल्टर कंसीलर एंड इट वर्क्स मैजिक फॉर मी. बट टॉकिंग अबाउट दिस फाउंडेशन, ये बहुत हैवी एंड स्टिकी है. एक जगह से हिल नहीं रहा है, बल्ज नहीं हो रहा है, इजीली ग्लाइड भी नहीं हो रहा है. आई एम यूजिंग वेरी लिटिल मोशन, फिर भी वो हिल नहीं रहा है. बस एक ही जगह पे पैच बन के थोड़ा ब्लेंड हो रहा है. एंड कवरेज के हिसाब से इट इज येस गिविंग अ फुल कवर, बट इट्स नॉट ब्लेंडिंग एफर्टलेसली. बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है, बहुत प्रेशर डालना पड़ रहा है, तब जाके वो ब्लेंड हो रहा है. सो आई थिंक आई माइट स्किप दिस वन एंड डेफिनेटली गो विद द Smashbox Halo one foundation. Not happy with the Huda Beauty one. Okay, the next product जो मैं दिखाने वाली हूँ उसके बारे में मैं super duper excited हूँ and इतनी ज़्यादा खुश हूँ because ये product मेरे favorite content creator का है, which is Sara Sarosh. and आज जो भी मैं ये कर पा रही हूँ ना, मेकअप ट्यूटोरियल्स या मेरा यूट्यूब चैनल, मैंने सारी चीज़ें उनसे देख के सीखी है. आई जस्ट एडमायर हर एंड फाइनली शी हैज़ गॉट हर न्यू मेकअप रेंज. शी हैज़ लॉन्च हर न्यू मेकअप रेंज एंड आई एम so happy and excited to share with you guys that this is her liquid blush from the range Beyond the Dream Pack X Sara collection, and this is the dewy liquid blush in the shade Fudge Me Not. एंड जब मुझे ये न्यूज़ जैसे उसने ब्रेकआउट की कि आई हैव लॉन्च माई मेकअप, आई हैड टू गेट माई हैंड्स ऑन हर प्रोडक्ट्स. दो मैंने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स इसमें से मंगाए हैं, एक है लिक्विड ब्लश एंड एक है मिस्ट. बट सो हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ सारा स्क्वाड मेंबर. तो आई हैड टू गेट दिस. कैसे हमारे वैनिटी में सारा का प्रोडक्ट नहीं होगा? ऑफकोर्स हमारे वैनिटी में सारा का प्रोडक्ट होगा एंड आई एम गोइंग टू फाइनली ट्राई इट. बट टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट,
जो दिमाग लगाया है भाई इसमें, इट इज़ अ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत पूरा होलोग्राफिक है ऊपर से, एंड अंदर से भी अगर आप बॉटल देख पा रहे हो ना तो बहुत होलोग्राफिक काइंड ऑफ पैकेजिंग दी है. नाउ लेट्स चेक द पिगमेंटेशन. आई एम सो एक्साइटेड टू चेक इट आउट. ओके, शी हैज ऑल्सो क्लेम कि ये लॉन्ग लास्टिंग काइंड ऑफ ड्यूई लिक्विड ब्लश है, क्योंकि लिक्विड ब्लशेस बहुत इजीली वेयर ऑफ हो जाते हैं. सो शी हैज क्लेम्ड इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग वन. और लेट्स अप्लाई दिस कलर ऑन आवर चीक्स. आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट. ओ माई गॉड. एंड मैंने बहुत सोच समझ के कोरल कलर चूज किया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पिंक ब्लशेस थे. आई नीडेड अ कोरल काइंड ऑफ ब्लश. लेट्स ब्लेंड दिस. मैंने कुछ ज्यादा ही लगा लिया ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज वन ड्रॉप वॉज इनफ. कैन यू सी दैट कलर गोइंग ऑन? मक्खन की तरह, जैसे सारा बोलते हैं ना, मक्खन की तरह इजीली ये ब्लेंड हो गया है मेरे स्किन में. एंड मुझे लग रहा था ये बहुत ज्यादा होगा, बट इट इज ब्लेंडिंग ब्यूटिफुली एंड परफेक्टली सूटिंग ऑन माई चीक राइट नाउ. कुछ भी ज्यादा नहीं लग रहा है. Perfect. I am loving this blush. Truly loving the effect, loving the color, loving the coral effect going on my cheeks. And I can't put in words. I'm feeling so beautiful. क्योंकि बहुत easily blend हो गया, बहुत smooth है. And just one drop भी ले लो ना तो भी more than enough है. मैंने तो ज़्यादा ही लगा लिया. Already हमें set भी करना है अपना makeup, तो वो set हो जाएगा. But I think more than one drop is enough. और एक हल्का सा highlighting effect भी दे रहा है. If you are someone who just wants to apply a blush and don't want to apply highlighter, you can go with this one. और एक blush भी है हमारे new makeup ने, which is by the Prayush Beauty. It looks like a chocolate, and I'm not going to apply it on my cheeks, but I just wanted to show you guys the shade. This is in a little bit darker brown shade tone, if I'm not wrong. But already I have applied, so मैं वो change नहीं करना चाहती color. I'll apply here, and this is the color. You can see it's a mauve kind of a tone, and let's blend and see the pigmentation. Yeah, it is a very mauvish tone, if you can see properly. So that's the color. We'll apply it in another makeup tutorial for sure. अभी मुझे सिर्फ ये प्रोडक्ट में खुशी रखना है खुद को. Okay, now we are done with the blush. Now moving on to the contour. I have taken a palette of cream contour by PAC. This is the PAC Sculpt and Shine Contour and Highlight Cream Palette. So मेरे पास already contour sticks थे, वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाते थे. So I wanted to invest in a palette जो मुझे ज़्यादा टाइम तक चले. So I found this, and it's a cream palette. So I mostly use cream products. This is a very good kind of investment for me. So I'll take a little dark tone on my brush. Little hint of contour, not too much. Cream contours always perform the best on dry skin type, so there's no question the PAC product is always promising, and हमेशा PAC के products perform कर ही लेते हैं. They are also in a affordable range. Moving on to the highlighter. For the highlighter, I have a liquid highlighter which is by the e.l.f. Halo Glow Liquid Filter. Now इसे चार्लेट टिलबरी का ड्यूप बोला गया है. बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने ये ट्राई किया है, एंड दिस इज इन अ वेरी अफोर्डेबल रेंज. सो आई एम गोइंग टू ट्राई माई सेल्फ एंड सी वेदर इट मेक प्रॉपर जस्टिस विद द चार्लेट टिलबरी फ्लॉलेस फिल्टर. ऑल्सो द प्रोडक्ट लुक्स एग्जैक्टली सेम. द वॉन्ड इज ऑल्सो द सेम. लेट्स सी डज इट गिव्स द एग्जैक्ट सेम शाइन एंड डज द जस्टिस ऑफ चार्लेट टिलबरी. I think the answer is yes. It is exact dupe of Charlotte Tilbury Flawless Filter, because वही same glowy effect आ गया जैसे मैंने इसे अप्लाई किया है. मैं बहुत बार मेरा Charlotte Tilbury यूज कर चुकी हूँ, so I know that glow and the highlighting effect are both the same, and it is very surprising कि they have exactly duped the product. And the best thing, it is also inexpensive. It is affordable as well, so you can get your hands on this. Now moving on to the next product, which is the loose powder. So the loose powder I'm going for is the PAC Spotlight Loose Powder, and ये मुझे बहुत टाइम से लेना था, but ये हमेशा out of stock होता था. Reason I wanted to get my hands on this is it's a pink loose powder. अगर आपको दिख रहा होगा, the color is pink, and I wanted to try a pink loose powder. How does it set on your makeup? Does it give a pink effect or does it give a normal effect? So I had that thing, and the packaging is very luxe. If you can see, there's a black and golden packaging going on, and I'm very excited to try the pink effect going on. Let's see how it works.
बहुत इंस्टेंटली एक मैट फिनिश आ गया, इजीली सेट हो गया मेरे मेकअप। इफ यू कैन सी बहुत फिनिश्ड काइंड ऑफ इफेक्ट आ गया है जस्ट मैंने अप्लाई किया है तो। दैट्स व्हाट एक्चुअली आई एम फीलिंग आफ्टर अप्लाइंग दिस लूज पाउडर। अगर आपको कैमरा पे दिख नहीं रहा होगा, दिस इज द अनफिनिश्ड साइड। अभी भी यहाँ पे हमें सेट करना बाकी है। यहाँ पे पूरा एक सेट काइंड ऑफ अ फील आ, मतलब एक साथ पूरा मेकअप लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेकअप किया है, बहुत फिनिश्ड इफेक्ट आ गया। और यहाँ पे पूरा ग्लोई इफेक्ट चालू है। ये सिर्फ 2-3 बार मैंने पुश किया है एंड उसमें ही मुझे ये फिनिश्ड। Oh my god, so I think I have a favorite kind of loose powder, which is the pink powder. Okay, moving on to the next favorite product of this haul. मैंने already declare कर दिया है कि it is my favorite because it has to be the another product from Sara's collection. This is the Dewy Hydrating Mist from Pack X Sara, and again the packaging is the same, the holographic effect going inside the bottle and on the cap. Now let's try it out and set our makeup with this product. इस बहुत ही माइल्ड स्मेल है एंड फील वाइज बहुत सूदिंग काइंड ऑफ अ फील है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील है जैसे एक मिस्ट में होना चाहिए। एंड आई एम नॉट बीइंग एनी पार्शियल अबाउट इट, मैं जो है वो रिव्यू बता। सो लेट्स सी हाउ डज इट सेट्स माय मेकअप, लेट इट ड्राई एंड देन आई विल कैच यू। ओके, द फाइनल रिव्यू ऑफ दिस मिस्ट। एग्जैक्टली प्रोपोर्शन में मेरा मेकअप सेट हो चुका है, बिल्कुल भी ड्यूई या ज्यादा ओवर ड्यूई नहीं लग रहा है, बहुत परफेक्टली सेट हो गया है एंड बहुत ही एक हाइड्रेटिंग इफेक्ट दे रहा है बिकॉज मेरा मेकअप बहुत मैट हो चुका था आफ्टर द पाउडर। अब वो वापस लाइवली टोन में आ गया है, थोड़ा सा ग्लोई काइंड ऑफ इफेक्ट मुझे दिख रहा है जो मुझे अच्छा लग रहा है एंड माइल्ड काइंड ऑफ एक ड्यूई फिनिश आ गया है। सो आई एम लविंग दिस मिस्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस हॉल इज अ लिपस्टिक। फॉर लिपस्टिक आई हैव गॉट द Too Faced Melted Liquid Lipstick. I wanted to try out the Too Faced liquid lipsticks from a while, and this is in a very nudish mauve tone. Will go exactly with my makeup and with my outfit as well. Let's see. Okay, I'm finally done with my makeup and the final say about the lipstick. It is a proper matte प्लस क्रीमी काइंड ऑफ अ लिपस्टिक, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइड अप और मैट लिपस्टिक्स ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मेरे लिप्स बहुत इजीली ड्राई अप हो जाते हैं। मुझे थोड़े बहुत क्रीमी एंड थोड़े बहुत मैट, लाइक इन बिटवीन काइंड ऑफ लिपस्टिक्स पसंद है इफ़ आई एम गोइंग फॉर मैट लिपस्टिक्स या मैट लिक्विड लिपस्टिक्स। सो दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एंड बहुत अच्छा कलर है, बहुत ईजिली सेट हो गया है मेरे लिप्स पे और मैचअप कर रहा है विथ माई लुक। एंड ओवरऑल टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स, आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट। सिर्फ एक कौन रहेगा इसमें इज द Huda Beauty's foundation because it was very sticky color wise and everything and coverage wise it was perfect, but blend करते टाइम बहुत मुश्किल हो रही थी, तो that is just a no I think from the overall haul। बाकी के सारे products were on point and of course मेरा favorite होने वाला है सारा के products, even though if I love the Pack Spotlight loose powder, but then these two products have my heart in this haul and very happy to share the review on my channel about Sara's products। And yeah, with this I reached to the end of this video। if you loved this review, अगर आपको ये review अच्छा लगा हो, helpful लगा हो, then please do not forget to give it a big thumbs up and comment section में comment करना जो भी आपको advice देनी है या कोई tips देना है या कुछ भी पूछना है। I will be very happy to answer that and I will see you in my next one। Till then, bye bye।